رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلتی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکش ترا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میں زنم دمزر شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میں زنم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نظر عقیدت پیش کر لیں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج یہ میلاد پاک کے مسلسل چوتھی رات ہے اور ہم عاشقان رسول سرکار کے تذکرے سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اس لیے کہ عاشق رسول اور صحیح سنی مسلمان جس کے دل میں نبی کا عشق ہو، یقیناً حضور کی ولادت کے نام سنتے ہی اس کا دل جو ہے وہ مچل اٹھتا ہے۔ اگر کوئی صحیح میں نبی کا سچا غلام ہو تو نبی کی آمد اس کے دل میں ضرور ہوگی، نبی کی آمد کی خوشی اس کے دل میں ضرور ہوگی۔ اور یہی بات ہے کہ ہم سنی جو صحیح معنی میں حضور کے غلام ہیں، وہ ربیع الاول مہینہ آتے ہی جس مہینے میں حضور کی آمد ہوئی ہے، اس آمد کی خوشی میں ہم لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بس میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ہم کرتے جاتے ہیں، گھر کو سجانا، لائٹنگ کروانا، اس کے علاوہ جھنڈے لگوانا، یہ تمام چیزیں جو ہماری بس میں ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم کرتے جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ صرف ایک ہی ہے کہ عشق نبی ہمارے دل میں ہے۔ اگر کسی صحیح سنی مسلمان جس کے دل میں نبی کا عشق ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ نبی کی آمد کی خوشی تمہارے اندر کتنی ہے، حضور کی ولادت کی خوشی تمہارے اندر کتنی ہے، تو خدا کی قسم کوئی بھی سنی سے تم پوچھو گے، جواب یہ ملے گا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں شاید آسمان و زمین کی ہر ذرے کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حبیب کی آمد کی خوشی میں ہر ذرے کو میں سجاتا رہتا، اور صرف 12ویں ربیع الاول ہی کو نہیں بلکہ یہ دنیا جس طرح حضور کی آمد پر سجی ہے،
जबकि इससे पहले हुजूर की आमद से पहले ये दुनिया में जो रौनक आप देख रहे हो, ये रौनक भी ना हुआ करती थी। हुजूर की आमद पर पूरी दुनिया पे रौनक। इसलिए एक सुन्नी के दिल में हुजूर की आमद की खुशी ऐसी होती है, अगर उसकी बस चले, अगर उसका बस चले तो पूरी दुनिया को वो सजा दे। लेकिन हत्तल इम्कान हम अपने दिल से ऐसे खुशी जाहिर करते हैं कि मिलादे सजाते हैं, मिलादों में हाजिर होते हैं। और ऐ सुन्नी भाइयों, ऐ आशिकाने रसूल, हुजूर की आमद ऐसे मनाओ, ऐसे मिलाद में हाजिर हो, इश्क़ रसूल दिल से ऐसे जाहिर करो और बगल वाले को बता दो, बगल वाले को बता दो, दुश्मनाने रसूल को बता दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदो जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदो जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये हमारी जुबान पर हमेशा ये होनी चाहिए। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, विलादत मुस्तफ़ा पर हम अपना इश्क इस तरीके से जाहिर करेंगे, मिलाद मुस्तफ़ा इस तरीके से जाहिर करेंगे, ताकि वो अदो और दुश्मनों को हम बता दें कि आशिकाने रसूल जो सच्चे इश्क वाले होंगे, हुजूर की मोहब्बत में वो क्या क्या कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। ये मिलाद मुस्तफ़ा में हाजिर होने की बरकत मैं आपको बता दिया था। अगर इश्क दिल में है तो इश्क में इजाफा होता है। महफिल में हाजिर हो गए, अगर किसी के दिल में इश्क ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठा देता है। यह है महफिल मिलाद की सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ा फ़ायदा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन बंदों में पैदा फरमाया जो हुजूर की मिलाद मनाए। और आपको अगर एक जुमला कहूँ ना तो शायद आपको और एक चीज़ समझ में आए कि हुजूर की मोहब्बत एक ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क जो है ना, ये आम बात नहीं है। आपको मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, जो बंदा हुजूर के बारे में ये अकीदा रखे या हुजूर को इस तरीके से माने कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हुजूर मेरे ही जैसा एक बशर है, हुजूर मेरे ही तरह एक शख्स है। अगर कोई बंदा इस तरीके से अकीदा रखे या हुजूर को ऐसा ही माने तो खुदा की कसम उसके दिल में नबी का इश्क कभी नहीं बैठ सकता है, नबी की मोहब्बत कभी नहीं बैठ सकती है। जब तक कि उसके दिल में ये अकीदा ना बैठ जाए कि या रसूल अल्लाह आप जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आएगा, जब तक उसके दिल में अकीदा ये ना बैठ जाए, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जब तक ये अकीदा किसी के दिल में ना बैठ जाए, खुदा की कसम नबी का इश्क उसके दिल में नहीं बैठ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ऐसे हैं, हम सुन्नी मुसलमानों के दिल में नबी का इश्क उस तरीके से इसलिए बैठा है कि हम ये अकीदा रखे हुए हैं कि नबी नहीं थे तो कुछ नहीं था, नबी ना होते तो कुछ भी नहीं होता। ये अकीदा हमारे दिल में बैठा हुआ है। इसलिए हम मिलाद महफिल और ये मिलाद मुस्तफ़ा सजा करके ये बता दे रहे हैं, देखो नबी के आशिक नबी की विलादत में किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। मोहतरम सामईन, ये हुजूर की विलादत की मुसलसल चौथी मजलिस, और आपने गुज़श्ता कल समाअत फरमाया कि हुजूर की आमद से पहले
मक्कतुल मुकर्रमा के हालात क्या थे, मक्कतुल मुकर्रमा में किस तरीके से जुल्म और सितम का माहौल था। आपने समाज फरमाया कि अगर कोई एक नई नवेली दुल्हन शादीशुदा औरत का अगर कोई शौहर इंतकाल हो जाता था तो उसके साथ मक्के वाले किस तरीके से मामला करते थे, एक बेवा के साथ मक्के वाले क्या क्या करते थे। आप ये तमाम बातें सुने। आपने सुना कि उस औरत को या तो जल भून करके मर जाना होता था या फिर उस औरत को किसी रूम में एक कमरे में बंद कर दिया जाता था 6 महीने तक। 6 महीने के बाद अगर वो औरत जिंदा निकलती तो उस औरत के चेहरे पर कालिक लगा देते और उसके बाद गधे पर बिठा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। उस औरत को लोग पूरे शहर में घुमाते थे और उसको यही बातें लानो तान करते थे कि ये इतनी मनहूस औरत है जो अपने शौहर के मरने का जरिया बनी। अल्लाहु अकबर। एक बेवा के साथ आलम ये करता था, ये मक्के वाले इस तरीके से मामला करते थे। मक्के वालों का जुल्म और सितम इस हद तक था कि अगर कोई बाप अपने एक नाबालिग बच्चे को छोड़ करके इंतकाल कर जाए तो उस बच्चे को हम यतीम कहते हैं। मक्के वाले क्या करते थे, अगर यतीम वारिस बना, यतीम के जितने भी मालो दौलत होते थे, मक्के वाले सारी चीज़ों पर जुल्माना तौर पर, जालिमाना तौर पर, नाहक तमाम चीज़ों पर जब्त कब्जा कर लेते थे। हर चीज़ों को जो है छीन लेते थे और उस बच्चे को बिल्कुल एक रास्ते में इस तरीके से भेज दिया जाता था। लोग जुल्म की इस हद तक पहुंच चुके थे कि एक बच्चे को भी नहीं छोड़ते थे वो, जबकि यतीम बच्चे को सहारा देना चाहिए। लेकिन मक्के वालों का आलम यह था कि वो यतीम बच्चों के तमाम मालों पर कब्जा करते थे। मक्के में हालत ये थी, बुत परस्ती की तो हद पार कर दिए थे। उसके अलावा लोगों के साथ जो मामला होता था, अल्लाहु अकबर। लेकिन ऐसे आलम में मेरे सरकार ने आके बता दिया कि अगर ये यतीम बच्चा दुनिया में पैदा हो तो वो तमाम यतीमों का सहारा भी बन सकता है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत आमिना का लाल, जिस दिन वो आफताब रिसालत आमिना के गोद पे चमका और वो आफताब रिसालत, वो महताब रिसालत जिस दिन आमिना के गोद में तशरीफ लाया, बता दिया कि एक बेवा, जो कि इससे पहले बेवाओं का ये हाल किया जाता था, लेकिन एक बेवा मुख्तारे दो आलम का सरदार की माँ भी हो सकती है। उसके बाद हुजूर यतीम बाज़ाहिर पैदा होकर अपनी माँ बेवा होकर, अल्लाहु अकबर, नबी ने दुनिया वालों को बता दिया कि बेवाओं का मकाम यह नहीं बल्कि बेवाओं का मकाम एक ऐसा भी होता है कि वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की माँ भी हुआ करती है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की वो माँ भी हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मक्के वाले उस वक्त अंधेरे में चले गए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जिस तरीके से मक्के में एक रोशनी और जिस तरीके से मक्के में एक किरण फूटी थी, अल्लाहु अकबर, सब लोग समझ चुके थे कि इससे पहले जो हम जुल्माना तौर पर एक यतीम पर जुल्म करते थे, बेवाओं पर जुल्म करते थे, ये हक नहीं है, ये सच नहीं है। एक औरत की वजह से किसी मर्द की मौत नहीं हो सकती। एक औरत मनहूस अगरचे हो जाए लेकिन उसके शौहर के मरने का कारण वो नहीं बन सकती। अल्लाहु अकबर। उस दिन समझ में आया जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत आमिना के गोद में तशरीफ लाया। अल्लाहु अकबर। उससे पहले मामला ऐसा ही। अब एक ही बात कई लोगों के जहन में बात आती है कि हुजूर करीम, तवज्जो इधर चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम क्यों पैदा हुए। लोगों के जहन में बात आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल कैसे हो गया। तमाम बातें इंशाअल्लाह मैं करूंगा, लेकिन गुज़श्ता कल जहां तक मैंने छोड़ा था,
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक मैंने बात लाई थी कि कुसी के लड़के अब्द मुनाफ के लड़के हज़रत हाशिम के लड़के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लड़के अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के लड़के मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो बातें हैं आप जानते हैं, खानवादाए रिसालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ख़ानदान इतनी शराफत और इतने आला दर्जे के थे कि सब अपने अपने दौर के एक बड़े सरदार हुआ करते थे। सब अपने अपने दौर में आला तकवा परहेजगारी में सबसे आला होते थे, और लोग उस शख्स को इत्तेहादी तौर पर मानते थे। बिलखुसूस हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि मेरे नबी के दादा हैं। हुजूर करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दादा अब्दुल मुत्तलिब ये खाना काबा के मुतवल्ली थे, सरबराह थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने में कबीला कुरैश के ये सरदार थे, और इनका मर्तबा ऐसा था, आप समझ गए कि खाना काबा के मुतवल्ली थे तो इनका दर्जा कितना बुलंद वाला था। खाना काबा के मुतवल्ली होना आम बात नहीं, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस दौर में खाना काबा के मुतवल्ली थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जिस वक्त खाना काबा के मुतवल्ली थे, इनके दौर में एक मुल्क शाम में एक बादशाह था, एक सरदार था जिसका नाम था अबरहा। और आप कुरान मुक़द्दस जो लोग पढ़े हैं वो यकीनन ये सूरत ज़रूर पढ़े होंगे, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ये सूरत ज़रूर आपने पढ़ा होगा या फिर सुना तो ज़रूर है। अलम तरा कैफ़ फ़अल, ये 30वें पारे में है ये सूरा। अब इस सूरे का जो नुज़ूल है ना, ये तो हुजूर पर ये सूरत उतरी, लेकिन दर हकीकत इस सूरे में पूरा का पूरा वही वाक़या है जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ अबरहा का मामला हुआ था खाना काबा को लेकर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने परहेजगार और अल्लाह के इतने मकबूल बंदे थे कि ये जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, रब तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमाता था। क्यों? इसलिए कि नूर मुस्तफ़ा उनके आंगन में आने वाले थे, नबी की विलादत जो उनके आंगन में होने वाली थी, तो क्या उस ज़ात की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल ना करे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक अबरहा नामी शख्स जो मुल्क शाम में रहता था, वो अबरहा एक ईसाई था, और ईसाई होने की बुनियाद पर उसने एक चर्च बनाया था, एक ईसाई गिरजाघर बनाया था, और इरादा ऐसा कर रहा था वो कि जिस तरीके से मुसलमान खाना काबा के हज करने के लिए आ रहे हैं, तो वो मुसलमान खाना काबा के हज करने के लिए नहीं बल्कि हमारे गिरजाघर में हज करने के लिए आए। उसके दिल में ऐसा इरादा बना था, और इस इरादे से उन्होंने एक गिरजाघर बनाया, चर्च बनाया, और बड़ा आलीशान बनाया था। बादशाह था, पैसे की कमी नहीं थी, तो उसने बड़ा आलीशान ये चर्च बनाया था, और इरादा ऐसा बनाया था कि मुसलमान खाना काबा ना जा करके हमारे चर्च में आए हज करने के लिए। तो जब ये इधर मक्के में खबर हुई तो एक शख्स जो है मुल्क शाम में पहुंचा, और उसके चर्च में जा करके वो गंदगी फैला दी। उसने 2 नंबर करके आ गया वहां पर। अब ये बात तो आम है, बच्चे समझते हैं, बच्चे इस बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। मदरसे में तो यही 2 उंगली है ना बेटा, चलो अल्लाह सलामत रखे। समझ रहे हैं आप? एक मक्के का एक शख्स गया और वो चर्च में जाकर के गंदगी फैला दिया। उधर अबरहा को जैसे ही खबर हुई कि कोई मक्के से आया था
और हमारे चर्च को गंदा कर दिया है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। गूंजते हुए वो मक्के में दाखिल हुआ और एक फौज लेकर के दाखिल हुआ और ये इरादा करके दाखिल हुआ कि हम खाना काबा को तहस नहस कर देंगे। उसने इरादा बना करके आया कि हमारे चर्च को मक्के वाले गंदा किए तो हम उनके खाना काबा को जो है ढा देंगे, गिरा देंगे, तहस नहस कर देंगे। इस इरादे से अब्राहा वहाँ से एक फौज लेकर के निकला और हाथी पर सवार होकर के सारी फौजों को लेकर के मक्के में दाखिल हुआ। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली हुआ करते थे। मैंने एक बात आपको बताई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के कितने मकबूल हैं, आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। और मकबूल किस लिए? इसलिए कि उनके आंगन में विलादत मुस्तफ़ा होने वाली है, इसलिए वो मकबूल बंदे हैं। और मकबूल कैसे है, मैं उसी बात को आपको समझाने लगा हूँ। अब्राहा जैसे ही हाथियों पर सवार पूरी फौज को लेकर के मक्के में दाखिल होता है, इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर होती है। अल्लाह अकबर। वो अब्राहा आने के बाद मुसलमानों वहाँ पर जितने भी मक्के वाले रहते थे तमाम के बकरियों को वो कब्जा कर लिया, इनकी दौलत पर कब्जा कर लिया, लोगों को जो है सताने लगे, परेशान करने लगे और ऐलान करने लगे कि हम खाना काबा को तहस नहस कर देंगे। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुँचे। उसके बाद अब्राहा के सामने जैसे ही आप पहुँचे, अब्राहा को खबर हुई कि कबीला कुरैश के सरदार आए हुए हैं मुझसे मुलाकात के लिए। तो अब्राहा अपनी कुर्सी छोड़ करके जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए खड़ा हो गया। और खड़ा इसलिए नहीं हुआ कि वो सरदार थे, बल्कि रिवायत में तारीख में ये मिलता है कि अब्राहा अब्दुल मुत्तलिब के पसीने में एक ऐसा जो है चमक नजर आया, उसको एक ऐसा चमक उसको दिखा कि उसे कुर्सी में बैठा ही ना रहा गया और बैठ ना सका कुर्सी में। जैसे उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में वो नूरे मुस्तफ़ा की चमक को देखा तो वो बेजा और ना चाहते हुए भी अपनी कुर्सी को छोड़ करके खड़ा हो गया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इस्तकबाल के लिए। उसके बाद अब्राहा ने कहा, कबीला कुरैश के सरदार मुझसे मिलने आए हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बताइए क्या मामला है, क्या बात है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि तुमने जो हमारी बकरियों को कब्जे में रखा है उसको छोड़ दो, जो ऊँट को हमारे तुमने कब्जे में रखे उन्हें छोड़ दो। अब्राहा कहता है कि मैं तो खाना काबा ढाने के लिए आया हूँ, तवज्जो इधर चाहता हूँ। अरे बच्चे खामोश रहो, थोड़ा सा मेहरबानी करो मुझ पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कही कि हमारी बकरियों को जो तुमने कब्जा करके रखा है वो बकरियों को छोड़ दो, जो ऊँटों पर तुमने कब्जा किया उन ऊँटों को छोड़ दो, तो अब्राहा ने क्या कहा मालूम है? अब्राहा जवाब दिया, क्या ए कबीला कुरैश के सरदार, हम यहाँ पर आए हैं खाना काबा को तहस नहस करने, खाना काबा को गिराने, और ये बात तुमको भी मालूम है, हम पूरी फौज के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और तुम हो कि यहाँ पर आकर के अपनी बकरियों की बात कर रहे हो। मैं तो समझ रहा था कि तुम सरदार हो, तुम आकर के मुझे खाना काबा के मुतालिक कुछ बात करोगे, लेकिन तुम तो खाना काबा के ताल्लुक से कोई भी बात नहीं की, तुम अपनी बकरियों के चक्कर में हो। ये लो तुम्हारी बकरी। तो जितनी भी बकरियों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था वो उसने सारी बकरियों को उसने छोड़ दिया। लेकिन वहां पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया अब्राहा को, जवाब ये दिया, अब्राहा ये बकरियां जो है ये हमारी है और खाना काबा, ये जो काबा बैतुल्लाह है ये अल्लाह का घर है, और जिस तरीके से हम अपने घर की हिफाजत करते हैं रब तबारक व तआला भी अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब क्या दिया था? अब्राहा तू फिक्रमंद है कि मैं खाना काबा के ताल्लुक से मैंने कुछ नहीं कहा, तो फिक्र ना करो,
जिस तरीके से हम अपने घर की हिफाजत करते हैं वो अल्लाह का घर है, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि वो अपने घर की हिफाजत किस तरीके से करेगा। ये बातें कह करके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस हो जाते हैं। वापस होने के बाद खाना काबा में पहुंचते हैं, और ये जो बातें होती है शाम का वक्त, शाम के वक्त में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में पहुंचते हैं। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद खाना काबा की दीवार पे हाथ रख के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह अबराहा यहाँ पर आया हुआ है पूरे फौज के साथ, हाथियों पे सवार हो करके, मौला तू अपने घर की हिफाजत करना। ये दुआ करके आप वापस हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जैसे ही अबराहा अपनी फौज को लेकर के खाना काबा की तरफ आगे बढ़ा, अब जो मामला हुआ आप ये सूरह फील में आप पढ़ सकते हैं। अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। इस आयत करीमा में पूरी वो वाक़या जो वहाँ पर जो मामला हुआ वो सारी चीज़ें ये कुरान ये आयत ये सूरतों में, इस सूरत में। और अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर जो मामला फरमाया, खुदा की कसम आज आपको पता चलेगा कि अब्दुल मुत्तलिब रब तबारक व तआला की बारगाह में कितने मकबूल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की दीवार पे हाथ रख के दुआ करके आए। इधर अबराहा हाथियों को लेकर अपनी फौज को लेकर के खाना काबा की तरफ बढ़ा। उसके बाद जैसे ही उसका बढ़ना था, अल्लाह तबारक व तआला अबाबिल परिंदे को एक गायबाना तौर पर अबाबिल परिंदे को भेजा, और वो परिंदे जो छोटे छोटे चोंच में अपने अपनी चोंच में 2-3 कंकरियों को लेकर के वो जो है अबराहा फौजों के ऊपर उड़ने लगे, और उन तमाम परिंदों ने अपनी अपनी चोंच से वो छोटी छोटी जो कंकरी वो लिए हुए थे उन कंकरियों को वो फेंकने लगे। और जैसे ही वो कंकरी किसी हर एक फौज के बंदे के ऊपर पड़ती थी, वो कंकरी जैसी ही पड़ती थी तो मामला ये होता था कि वो परिंदे के चोंच से वो कंकरी फेंकना था कि वो बंदे के सर से लेकर पूरे पैर तक भी जो है वो चीरता हुआ वो कंकरी नीचे चल जाती और हाथी को भी चीरती हुई जमीन के अंदर चल जाती थी। अल्लाह अकबर। वो परिंदे का मामला ऐसा था कि वो परिंदे कंकरी फेंकती तो वो छोटी सी कंकरी उस बंदे को भी मार डालती और उस हाथी को भी मार डालती थी। अल्लाह तबारक व तआला गायबाना तौर पर यह अजाब नाजिल फरमाया और तमाम के तमाम अबराहा के फौजों को जो है अब्दुल्ला नामी शख्स की तलाश में जुट गए थे। एक मीटिंग हुई थी यहूदियों में कि देखो कबीले कुरैश में अब्दुल्ला नामी कोई शख्स अगर हो तो उसे कत्ल कर दो, और यहूदियों का जो तरफ से उसको कत्ल करेगा, जो भी उसको मारेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो एक यहूदी जो है तैयार हुआ कि हाँ हम तलाश करेंगे, हम मार डालेंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपने के आलम में हैं, लेकिन किरदार और सूरत में सीरत में अल्लाह ने लाजवाब पैदा फरमाया है। पूरे कबीले में उनका मिसाल नहीं था। हज़रत अब्दुल्ला के पास वो शख्स जाता है। कबीला कुरैश में पूछते पूछते इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला मिल गए। शख्स ने पूछा कि भाई ए बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो और किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? हज़रत अब्दुल्ला ने कहा मैं कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहा कि तुम्हारे कबीले में अब्दुल्ला नामी कोई शख्स है या कोई बच्चा है? हज़रत अब्दुल्ला से पूछ रहा है ये यहूदी। हज़रत अब्दुल्ला से यहूदी पूछ रहा है तुम्हारे कबीले में कोई अब्दुल्ला नामी कोई शख्स है या कोई बच्चा? कहते हैं कि आप पूछ क्यों रहे? तो कहा बस ऐसे ही बताओ। कहा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको लग रहा है कि आप मुसाफिर हैं, आपके चेहरे से मालूम होता है कि आप बड़ी दूर से आए हैं। तो आप ये एक काम करें, यही करीब में मेरा घर है, आप मेरे घर तशरीफ़ ले चलें
اور पहले पानी पी लें, उसके बाद मैं सब बताता हूँ आपको, और अब्दुल्ला का ठिकाना एड्रेस भी बता देता हूँ। अब यहूदी वाकई में दूर से गया था तो हज़रत अब्दुल्ला के साथ चल पड़ा। उसके बाद जब घर पे ले गए, हज़रत अब्दुल्ला ने खजूर पेश की और पानी पेश किया। उसके बाद पानी और खजूर वगैरह देने के बाद, मेज़बानी के बाद, चूँकि ये मेज़बानी तो उनके ख़ानदानी एक आदत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुस्न दिया था उनके ख़ानदान में, ये मेज़बानी का। और मेज़बानी उस दौर में सबको नसीब नहीं होती थी, सब लोग मेज़बानी करने की जो है काबिल नहीं होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के ख़ानदान में ये सिफ़त अता फरमाई थी। हज़रत अब्दुल्ला जैसे ही खजूर दिए, पानी पिलाया, उसके बाद उस शख्स ने कहा, बेटे तुम बड़े नेक मालूम होते हो, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वाकई में मैं बहुत बड़ा प्यासा था और तुमने जब पानी के लिए पूछा तो तुमने मुझ पे बड़ा एहसान किया है, तुम मेरे मोहसिन हो, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन अब इससे पहले कि मैं अपने मकसद को भूल जाऊं, अब बता दो अब्दुल्ला कहाँ रहता है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि यहूदी बात तो बता कि तू क्यों उसको तलाश रहा है। कहा कि जब तुमने पानी पिलाया, खजूर खिलाया, जब तुमने इतना बड़ा एहसान किया, तो अब मैं राज की बात बता ही देता हूँ। हालांकि ये बात मैं किसी को अब तक बताया नहीं हूँ। ये राज की बात ये है कि वो अब्दुल्ला की शिकम से आखिरुज़्ज़मान नबी पैदा होने वाले हैं। आखिरुज़्ज़मान नबी पैदा होने वाले हैं और हमारे अंदर हमारी मीटिंग ये हुई है कि उस नबी को पैदा ना होने दिया जाए। इसलिए हमारे सरदार ने ये ऐलान किया है कि जो भी, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं पता पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तलवार निकाल और ये सामने अब्दुल्ला खड़ा है और गर्दन तुम्हारे सामने है, अगर जी चाहे तो तलवार चला ले। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है कि उस नौजवान ने जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला की ये बात सुनी, उनकी तरफ एक मर्तबा नज़र उठा करके उनके चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद उसके कदमों पे गिरा, और कदमों पे जैसे ही गिरा तो कदम से फिर नज़र की तरफ दोबारा नज़र नहीं उठा के देखा, बल्कि कदम में ही कदम चूमता रहा। हज़रत अब्दुल्ला ने उठाया, ऐ नौजवान क्या हो गया तुझे? कहा मैं ऐसे शख्स को कभी नहीं मार सकता, कभी कत्ल ही नहीं कर सकता जिनकी फितरत में मेज़बानी हो, जिनकी फितरत में मेहमान नवाजी हो, जिनकी फितरत में बाहर से आने वाले शख्स के लिए खजूरें और पानी पेश करने की आदत हो, और अल्लाह अकबर उनके चेहरे पे इस तरीके से एक नूर चमक रहा हो, उस शख्स को मैं कभी और उस बच्चे को कभी कत्ल नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कत्ल के इरादे से आया तो था, लेकिन मैं तुम्हारी कदमों से लग करके लिपट करके माफी मांगते हुए जा रहा हूं, और आज मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा इरादा कभी नहीं आएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। ये हज़रत अब्दुल्ला को तो रोशन किया था अल्लाह तबारक व तआला ने, उसे कौन बुझाए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खूबसूरती के आलम होते होते जब नौजवानी पर कदम रखता है, अल्लाह अकबर, अजीब मंजर उनको ख्वाब में नज़र आने लगता है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा, और पहुँचने के बाद बारगाह में अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, अब्बा जान मैं ख्वाब में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, बेटा क्या हुआ, क्या ख्वाब में देखते हो? हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे कि मैं ख्वाब में ऐसा देखता हूँ कि मैं अचानक किसी रास्ते से गुजरता हूँ और रास्ते के किनारे सूखा हुआ दरख्त मुझे दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उस दरख्त के करीब से मैं गुजरता हूँ, अल्लाह अकबर, तो वह दरख्त अचानक हरा भरा हो जाता है। मैं किसी नदी के पास से गुजरता हूँ तो वह मछलियाँ पास में आकर के, नदी की तमाम मछलियाँ इकट्ठा होकर के न जाने किस तरीके से सलाम पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्बा जान मैं ख्वाब में इस तरीके से अजीब व गरीब चीज़ें देखता हूँ कि कहीं पर सूखा हुआ नदी है
है, लेकिन वहाँ से मैं गुजरता हूँ तो वहाँ पर जो है पानी भर जाता है। अल्लाह अकबर, ऐसा ऐसा मुझे ख्वाब नजर आने लगा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो समझ चुके थे कि माजरा क्या है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ये बातें सुनने के बाद अब्दुल्ला की जुबान मुबारक से ये बातें जैसे ही सुन ली, हजरत अब्दुल्ला ने ये जहन बना लिया कि अब हजरत अब्दुल्ला का निकाह करना है, बेटे का निकाह कर देना है, अब शादी करनी पड़ेगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा शादी करनी है। खाना काबा में फिर जाकर के दुआ की, मौला अब्दुल्ला की सीरत और सूरत तूने लाजवाब अता फरमाया, तूने बेमिसाल अता फरमाया। मौला उसकी सीरत और सूरत के मुताबिक एक उसके लिए शरीक हयात भी तो अता फरमा दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ फरमाई। इधर एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला जंगल की तरफ पहुँचे शिकार के लिए, और वहाँ पर जैसे ही शिकार के लिए पहुँचे तो फिर यहूदियों ने घेर लिया। यहूदियों ने मारने के लिए घेर लिया, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला का पता तब तक लग चुका था। नौजवानी के आलम में यहूदियों को पता लग चुका था कि यही अब्दुल्ला है, लेकिन हर जगह अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से हिफाजत करता है, कैसा मामला हुआ और कैसे अल्लाह ताला ने वहाँ पर हिफाजत किया। आने वाले थे इस तौर पर कुछ जो है नकबर के वहाँ पर, और ये ऊँटों पर या घोड़ों पर सवार होकर के जो तलवारें लेकर के यहूदियों को भगाया, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत थी। उसके बाद ये जो मामला जंगल में हुआ, यही मामला एक शख्स वहां पर देख लिया जिनका नाम था वहाब इब्न अब्द मुनाफ। ये वहाब इब्न अब्द मुनाफ कौन? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना हैं। इन्होंने देख लिया कि अब्दुल्ला की हिफाजत इस तरीके से हो गई। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की ये मर्तबा और ये शान उनको नजर आया, ये समझ चुके कि आम नहीं है, बहुत खास है। और सबसे पहले तलाश करते हैं शराफत। हालांकि शराफत तो चलो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले घर तलाश करते हैं। घर अच्छा होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, बड़े पैसे वाले होने चाहिए। अब पता नहीं ये मामला क्या है कि अगर कोई आप किसी के घर से लड़की को लेकर के अपने घर में आएंगे तो उनके पैसे और बड़े घर से क्या लेना देना। और यही वजह है कि आप पैसे देख करके अभी बच्चों की शादी करते हो ना, इसीलिए मामला यहाँ तक पहुँचता है कि वो जैसी आपकी बहू बन करके घर पे आई तो वो अपनी जो है मिल्कियत घर पे साबित करना और जमाना शुरू कर दी, आपके ऊपर चढ़ करके बोलने लगी। अब वो शौहर को शौहर नहीं मानती, अब वो बाप को जो है ससुर को ससुर का दर्जा नहीं देती, सास को सास का दर्जा नहीं देती। क्यों? इसलिए कि वो भी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये लोग तो हमारे पैसे देख करके मुझे खरीद के लाए, और हमने अगर कुछ दहेज दे करके अगर इनके साथ रिश्ता किए हैं या इनसे शादी किए हैं तो वो भी तो समझती है कि हम तो दहेज दे करके इनको खरीद लिए हैं, अब जो भी हम बोलेंगे ये वही सुनेंगे। इसलिए तो वो सारी बातें। लेकिन आज भी अगर किसी के घर में जा करके आप सिर्फ इतनी बातें कह दो कि अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह का दिया हुआ सारी चीज़ें हमारे घर पे है, बस एक कमी है तो वो अपने बेटे के लिए एक बेटी की ज़रूरत है। अपने बेटे के लिए एक किसी की बेटी की ज़रूरत है जिसको हम अपने घर पे बेटी बना के रख सकें, ऐसी बेटी की ज़रूरत है। जब तुम बेटी की तलाश में निकलोगे दौलत पैसे को और घर देख करके ना, तो उस वक्त इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी बेटी ही मिलेंगी जो आपको ससुर का नहीं बल्कि बाप का दर्जा देंगी, जो आपके घर पे बहू जैसा रवैया नहीं बल्कि बेटी जैसी ही रवैया करेंगे। आपको पता है इंसान किस चीज से बनाया गया है? इंसान मिट्टी से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस चीज से हुई है? मिट्टी से ना। बारहा आपने सुना है ना कि मूर्ति बनाकर अल्लाह ताला ने उसमें जान डाली।
لیکن حضرت حوا جو سب سے پہلی عورت ہے حضرت آدم علیہ سے، یہ بھی آپ کو شاید معلوم ہو، یہ مٹی سے کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ اگر اللہ چاہتا تو جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بھی مٹی سے پیدا فرماتا، لیکن جب حضرت حوا کو پیدا فرمانا مقصد ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک ہڈی کے ذریعے سے حضرت حوا کی پیدائش پیدا کیے۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ اور اس کیوں کو جس دن آپ سمجھ جائیں گے آپ عورتوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بائیں پسلی کی ہڈی سے عورتوں کے اس لیے بنایا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ جب کوئی ایک جنس سے بنایا جائے نا، ایک ہی جنس سے، جیسے اگر دو شیر ہے تو آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں، اگر ایک ہی طرح کے دو جانور ہیں تو ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر جنس بدل دیا جائے تو جنس کی تبدیلی میں کئی بار محبت سے پیش آنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مرد عورت سے محبت کے ساتھ پیش آئے، اس لیے رب نے بائیں پسلی سے، دائیں سے نہیں۔ دائیں کیوں؟ اس لیے کہ دایاں پسلی جو ہے یہ ہمارے دل سے کافی دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بندی سے محبت کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ دل کے قریب جو ہڈی ہے اس ہڈی کو نکال کر کے عورت کی پیدائش فرمائی۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ دل کے قریب جو بائیں طرف کی پسلی دل کے قریب ہے نا، دل بائیں طرف ہے نا، یا میں کچھ الٹا بول رہا ہوں؟ بائیں طرف ہی ہے نا، تو بائیں پسلی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی محبت، چونکہ عورت کا مقام ہے مردوں کے دل میں، تو یہ دل میں کب رہ سکتی ہے؟ جب بائیں پسلی کے ہڈی سے پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مصلحات کے ساتھ اس عورت کو، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ اب ایک چیز اور میں بتاتا ہوں، بائیں پسلی کی ہڈی جو ہے نا، یا پسلی دونوں طرف کی، یہ تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بائیں پسلی سے عورتوں کو بنایا گیا ہے، اس لیے عورتوں میں تھوڑی نہ تھوڑی پاک جو ہے آپ کو ٹیڑھا پن نظر آئے گا، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ عورتوں کے اندر خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی مرد پوری طرح اس کو سیدھا کرنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائیں گی، سیدھی نہیں ہوں گی، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی ویسا کیا ہے۔ لیکن اس میں جو خوبی ہے وہ بھی خوبی آپ سن لو، یہ ہڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہڈی سے پیدا ہونے والی عورت کو حسین و جمیل بنایا، اور مرد کو صرف جمال عطا فرمایا، جو حسن نہیں، جمال عطا فرمایا۔ اسی لیے جانتے ہیں کہ مرد جو ہے یہ جمیل ہوتے ہیں، عورتیں حسین ہوتی ہیں، عورتیں حسین ہوتی ہے، اس لیے کہ ہڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبصورت رکھی ہے، خوبصورتی۔ تو عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، یہ اگر آپ نے محبت سے کیا، اگر دل سے کیا، تو واقعی میں یہ بھی آپ کے ساتھ اگر بہو بنا کر کے لائیں گے تو انشاءاللہ بیٹی کے جیسا معاملہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ لیکن آپ دل سے تو لائیں اس دن۔ آج ہماری ماں بہنوں سے بھی بڑی شکایتیں ہیں، آج بڑی ماں بہنوں سے بھی بڑی شکایتیں کہ پہلے جب تک رشتہ نہیں آتا نا تب تک بڑی پریشان رہتی ہے، کہیں سے دعا لے کر آؤ، کہیں سے تعویذ کراؤ، کہیں سے کچھ کراؤ تاکہ رشتہ آ جائے، اور رشتے آنے کے بعد اگر شادی ہو گئی تو مجھے یہاں تک سننے میں ملا ہے کہ کچھ عورتیں تو اپنا پیشہ بنا لیتی ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد کسی طرح طلاق لو، 2-4-5 لاکھ روپے وہاں سے لو اور کھسک جاؤ۔ چل رہا ہے معاملہ الحمدللہ۔ ہمارا جو ایریا ہے نا، بہار جھارکھنڈ، یہاں پر یہ سب معاملہ نہیں ہوتا، لیکن شاید کچھ جگہوں پر ہو۔ ایک معاملہ ایسا چل رہا ہے، لیکن میں
हाथ जोड़ करके गुजारिश करके मैं माँ बहनों से उनकी हकीकत को याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐ मेरी माँ बहनें, तुम अपनी हकीकत को याद करो कि तुम्हारी हकीकत क्या थी और इस्लाम ने तुम्हें क्या अता फरमाया है। और इस चीज को अगर तुमने जहन में रख लिया तो फिर तुम्हें कभी अपने शौहर से मुंह मोड़ने की या ऐसी गंदी सोच तुम्हारी जहन में कभी आ नहीं सकती है कि हम किसी तरह से तलाक लेकर के खिसक जाएंगे और रुपये पैसे के लालच में आकर के फिर जो है दूसरी सी शादी करेंगे। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तुम्हें जो तोहफा मिलता है, ये जो तुम्हें नेमतें मिलती है ना शौहर का, अल्लाह अकबर, ये शौहर का मर्तबा तो वही जाने जिनको नहीं मिलती। जिनको नहीं मिलता वही जानती है कि शौहर का मर्तबा और शौहर जो है क्या चीज़ होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन इस औरतों से और इन माँ बहनों से मैं हाथ जोड़ करके यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हकीकत को जब मैं याद दिलाऊं कि मक्कतुल मुकर्रमा की औरतों की भी हकीकत याद करो कि जब उन औरतों को किस तरीके से मामला करते थे। सिर्फ एक गुनाहों का जरिया बनाया था मक्के वाले। उस वक्त लोग ज़माना जाहिलियत में औरतों को कुछ और नहीं बल्कि अपने एक लौंडी समझते थे, एक जो है नौकर और गुलाम जैसे रखते थे। आज जो हमारे हिंदुस्तान हुकूमत चिल्ला चिल्ला करके ये कहती है कि हिंदुस्तान मर्द औरत को एक तरह जो है एक तरह तराजू में रखे जाए, एक पलड़े में रखा जाए, एक बराबर का हक दिया जाए। लेकिन इस हिंदुस्तान को भी पता नहीं कि इस हिंदुस्तान ये औरतों का मकाम कैसा था और इस्लाम ने कैसा दिया है। इस हिंदुस्तान को कोई बताए कि हिंदुस्तान से पहले औरतों का मकाम कैसा था, किस तरीके से। आज मुसलमानों को, आज इस्लाम को जो है सबसे ज़्यादा जो है रुसवा किया जा रहा है, इस्लाम को तानो तशरीह किया जा रहा है, इस्लाम को निशानी बनाया जा रहा है कि इस्लाम ने इंसाफ नहीं दिया औरतों के साथ। लेकिन अल्लाह अकबर, इस्लाम ने जैसा इंसाफ दिया है दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं होगा जो औरतों को इस तरीके से इंसाफ दे सकता है। ये इस्लाम मजहब ही सिर्फ औरतों को मकाम अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद यही मंशा के साथ और इसी मसलहत के साथ रब तबारक व तआला ने पसली के हड्डी से औरत को पैदा फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के लिए अब रिश्ते की तलाश जारी हो गई, रिश्ते की तलाश शुरू हो गई। हज़रत इधर वहाब बिन अब्द मुनाफ, उन्होंने जब देखा वो रिश्ते लेकर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद कहने लगा, ऐ कबीला कुरैश के सरदार, हम आपके सामने तो कुछ नहीं, आप माल और दौलत वाले हैं, आप बड़े पैसे वाले हैं, आप कबीले के सरदार हैं, मैं एक आम शख्स हूँ, लेकिन एक ख्वाहिश लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। कहा बोलो क्या? कहा मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगने आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ये बात सुनने के बाद आप पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? हज़रत वहाब फरमाते कि मैंने कहा नाम आमिना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दिल मचल उठे और उसके बाद कहा कि वहाब, अगर आज तू ये रिश्ता ना लेकर आता तो हो सकता है बहुत जल्द तुम्हारे घर पे मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आता। जैसे ही हज़रत आमिना का नाम उन्होंने सुना, रिश्ते की जो है मंजूरी हो गई। हज़रत आमिना से निकाह हुआ। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के सिर्फ चंद दिनों बाद सिर्फ अपने घर पे जाती हैं तो वहाँ पर बाप के घर पे जाकर के रोना शुरू कर देती हैं। रोती क्यों है? वहाब जब पूछते हैं बेटी क्या हुआ, क्या ससुराल में कोई तकलीफ़ है? ये बाप के अंदर एक फितरत होती है, आदत होती है। अगर शादी के बाद बेटी कभी आकर के बाप के घर पे रोए तो बाप ज़रूर पूछेगा कि बेटी क्या हुआ, क्या ससुराल में कोई तकलीफ़ है, क्या किसी बात को तुम्हें टेंशन है, ये बात ज़रूर पूछेगा। हज़रत वहाब ने भी पूछा बेटी क्या मामला है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? हज़रत आमिना फरमाती हैं अब्बा आप तकलीफ़ की बात पूछते हैं, मैंने आज तक उस घर जैसी मोहब्बत कहीं पर नहीं देखी। उस घर में जो भी जिस तरीके से मेरे साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं,
अल्लाह अकबर, आज तक शायद उस तरीके से मीठी बातें करते अब्बा मैंने आपको भी मेरे साथ नहीं देखी। आज मैंने उस घर में जो मामला देख कर आई। बेटी फिर क्यों रोती हो, क्या हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? हज़रत आमिना फरमाती हैं अब्बा रो इसलिए नहीं रही हूँ कि वहाँ पर कोई तकलीफ़ है, बल्कि रो इसलिए रही हूँ कि अब्बा तुमने निकाह तो कराया, लेकिन शायद और पहले करा देते तो मेरे लिए और अच्छा होता, और मैं शायद ऐसी ज़िंदगी और बेहतर और पहले से गुजारना चाहती थी, इसलिए ये आँखों में आंसू आने आ गई। और फिर थोड़ी देर बाद हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरती और ताज्जुब से अब्बा से पूछते हैं अब्बा जान ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बड़ा मुझे परेशान कर रहा है, एक बात बड़ी परेशान कर रही है मुझे, क्या इसका जवाब आपके पास है? हज़रत वहाब पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ? हज़रत आमिना फरमाती है कि अब्बा जब मैं अपने ससुराल से आपके घर की तरफ यानी यहाँ पर मायके में आने की जो है सोची, और घर से निकल के कदम जो है अभी रास्ते पे रखा ही था मैंने, इतने में देखा कि रास्ते के इर्द गिर्द जितने भी पेड़ और पौधे होते थे, जितने भी पत्थरें होती थी, अल्लाह अकबर, सब लोग ना जाने क्यों अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह रहे थे। अब्बा मुझे इस बात से बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मुझे यही आवाज़ सुनाई दे रही थी। हज़रत वहाब पुकार उठे बेटी मेरे दिल का मकसद जो था वो पूरा हो चुका है, जो मेरा इरादा था, जिस मकसद से मैंने अब्दुल्ला के घर पे ए आमिना मैंने तुम्हें भेजा था, वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाई, ए अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तूने मेरी लाज रख ली और मेरे मकसद में मुझे कामयाब कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला के अंदर जो हज़रत अब्दुल्ला के पेशानी में जो नूर अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को रखा था, उस वक्त हज़रत आमिना के शिका में मुबारक नूर मुस्तफ़ा आ चुका था। और इसीलिए हज़रत आमिना जैसे जैसे रास्ते से गुज़र रही तो सलाम का जो है नजराना आ रहा था, सलाम की आवाज़ें आ रही थी। हज़रत आमिना की शादी अभी 2 महीने सिर्फ हुई थी, इधर हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। कैसे होता है? हज़रत अब्दुल्ला घर से जाते हैं तिजारत के लिए और उधर जो है इंतकाल होता है। कैसे होता है, कहाँ किस तरीके से जो है घर से रवाना होते हैं, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह कल आपको आपके गोशो गुजार करूँ।